Assalamu alaikum students, welcome to our class. I'm your instructor Adil Raza and today we have to go through the second foundational lecture of this series. So students, let's find out what we have to learn today. So today, Translate your content into 29 languages in just seconds with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voice. so students, for today's foundational lecture, we have the topic clauses, phrases and sentence and their types. So if we discuss the concept of clause, phrase and sentence, these are the basic foundational concepts of English language, because each and every language made up of sentences. We use the language in form of sentences or in form of clauses or in form of phrases. Actually, we don't use language in the form of words. We use the language in the form of composed group of words, and some of the group of words are considered as the phrases and some of the group of words are considered as the clauses, and with certain characteristics some group of words are regarded as sentences. So there is a question, what is meant by a clause, phrase or sentence? Is there anybody who have an idea about the clause, phrase or sentence? Yes students, from the studio and from the online participants, क्या किसी को पता है phrase क्या होती है या clause या sentence? Make a guess, कोई guess बना दो जी, क्या है? Okay, so you have said that a line is a sentence, is that right? Line of this type. So which type of line? Okay, English की line. Okay, yes, from any participant which is online with us, is there any student who have an idea about clause, phrase or sentence? So nobody. It's actually a surprising thing, क्योंकि हम अक्सर ये सारे कॉन्सेप्ट्स कब पढ़ते हैं? 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में. तो आए इसे देखते हैं कि ये टॉपिक एक्चुअली है कहाँ का. ये टॉपिक दरअसल 6, 7, 8 का टॉपिक है और ये यहाँ पे आपके सामने इसका एसएलओ दर्ज है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसएलओस फर्स्ट. आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेंसेस, clauses and phrases. So the first SLO is identify and differentiate. So there are two action words, identify and differentiate, which means that we have to understand the concept of sentence, clause and phrase. तो इसी तरह से अगर हम उनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो तब हमें यह अंदाजा होगा कि हाँ, कौन सा सेंटेंस है, कौन सी फ्रेज है और कौन सी क्लॉज है, ताकि हम उनको क्या कर सकें, डिफरेंशिएट भी कर सकें और उनमें फर्क भी कर सके. यानी अगर हमारे पास एक लिस्ट हो जिसमें ये सारी चीजें मिक्स्ड है, तो हम कब जांच सकेंगे कि कौन क्या है? जब हमें क्या होगा, पता होगा, आइडिया होगा कि अच्छा फ्रेज ये होती है, क्लॉज ये होती है और सेंटेंस ये होता है. और ये एसएलओ किस क्लास का है? इंग्लिश 7 का, ग्रेड 7 का. So let's try to read the second SLO. Distinguish and write 4 types of sentences: declarative, exclamatory, interrogative and imperative. So students, the second SLO is concerned with the types of sentences, but these are not only the types of sentences. Sentences have different types on different bases. So we will go through all the types of sentences which are categorized on the different bases. So we will go through all those types. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इट्स एक्चुअली अ फाउंडेशनल लेक्चर. फाउंडेशनल लेक्चर का मकसद यह होता है कि आपकी उन कॉन्सेप्ट्स के एतबार से बेस बनाई जाए जो कॉन्सेप्ट्स आपको 8वीं जमात पास करने के बाद जिनका पता होना लाजिम था और किसी वजह से आपको उनका बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से नहीं पता. तो इस वजह से आपको क्या किए जा रहे हैं, ये कुछ लेक्चर्स दिए जा रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 6, 7, 8, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं किसके साथ? इंग्लिश 9 के साथ. ये सारे टॉपिक्स हमने इंग्लिश 9 में पढ़ने हैं, लेकिन तफसील के साथ. तो बेसिक्स कब पढ़े? बेसिक्स हम अब पढ़ लेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स.
क्लियर है? तो आए देखने की कोशिश करते हैं कि क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है और सेंटेंस क्या होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम डेफिनेशंस पे जाएं उससे पहले क्यों ना हम वैसे एक जनरल गैस बनाएं। क्या ख्याल है? देखें, लैंग्वेज किस पे मुश्तमिल होती है? वर्ड्स पे। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? समझ आ गई ना बात की? अब देखो, लैंग्वेज वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है, तो फिर ये क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस ये क्या हुए? एक बात तो कंफर्म हो गई कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस किससे बनते हैं? वर्ड से बनते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि लैंग्वेज का जो बेसिक फाउंडेशनल ब्लॉक है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है? वो वर्ड है। तो वर्ड से क्या बनेगा? बोलो। फ्रेज बनेगा, वर्ड से ही क्लॉज बनेगी और वर्ड से ही सेंटेंस बनेगा। लेकिन किस तरह के वर्ड से? वो वर्ड्स का कैसा कॉम्बिनेशन होगा कि जिसको हम फ्रेज बोलेंगे? वो वर्ड्स का कैसा कॉम्बिनेशन होगा कि जिसको हम क्लॉज बोलेंगे? वो वर्ड्स का कैसा कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम सेंटेंस कह सकते हैं? क्वेश्चन इज दैट। तो बच्चों, जो आम तौर पे डिफाइन किया जाता है, मैं सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं और फिर हम थोड़ी सी एडवांस अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे, क्योंकि हम मॉडर्न हैं और हम मॉडर्नाइज चीजों के साथ चलते हैं। अब देखें, सबसे पहले व्हाट इज अ फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन द कंप्लीट मीनिंग। ठीक है? ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल माना कन्वे ना करते हो, वो क्या है? फ्रेज। ठीक है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट ऑन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। इज दैट क्लियर? अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन जी, सवाल है ना? सो व्हाट इज मेंट बाय अ सब्जेक्ट, व्हाट इज मेंट बाय अ प्रेडिकेट? क्या आप में से किसी को पता है? जी, नहीं पता? कोई मसला नहीं, आए देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया कि फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट रादर देन द होल ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी किसी फिक्रे का एक छोटा सा हिस्सा जो कोई सर्टन टाइप का माना तो दे लेकिन कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना करे। बात समझ आई? जैसे वो क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्या है? एक सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है लेकिन मुकम्मल फिक्रा नहीं है। ठीक है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। यानी ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल? क्या हमें पता चला? नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई? और क्या एग्जांपल हो सकती है? सोचो जी, कुछ सोचो जी। अंडर द ट्री, और इन द हाउस, और जी आप इन द रूम, और द ग्रेट एम्परर। क्या ख्याल है? द गुड बॉय, ये भी तो हो सकते हैं ना, कि नहीं हो सकते? और समझ आई कि नहीं आई? यानी किसी फिक्रे का उतना हिस्सा जो कुछ ना कुछ मीनिंग कैरी करता हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ लिटिल बिट ऑफ मीनिंग, नॉट द कंप्लीट मीनिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, नॉट द होल सेंटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो फ्रेज ये है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगा कि जैसे हमने क्या बोला, ट्रेडिशनल ग्रामर में हम ये कहते हैं कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है, अब जो जदीद ग्रामर है, हम ऑल्दो फॉलो इसे करेंगे, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। ठीक है? समझ आ गई? तो अब वो क्या है? वो ये है कि फ्रेज कुड बी अ वर्ड। फ्रेज एक लफ्ज पे भी मुश्तमिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ्रेज को हम देखते हैं विद रेफरेंस टू सेंटेंस। फ्रेज को हम कब देखते हैं? विद रेफरेंस टू सेंटेंस। यानी फ्रेज एक सेंटेंस में होगी। तो सेंटेंस का जो बेसिक पैटर्न है वो क्या है? एस इज इक्वल टू एनपी प्लस वीपी। यानी एक छोटे से छोटा इंग्लिश सेंटेंस वो दो फ्रेजेस पे कम से कम मुश्तमिल होगा। किस पे मुश्तमिल होगा?
एटलीस्ट 2 फ्रेजेस पे, क्योंकि फ्रेज पूरा फिक्रा नहीं हो सकती ना, जिसमें एक नाउन फ्रेज होना जरूरी है और एक वर्ब फ्रेज होना जरूरी है। यानी एनपी से मुराद नाउन फ्रेज, वीपी से मुराद वर्ब फ्रेज। अब इसकी क्या एग्जांपल होगी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या कहता हूं, मैं एक फिक्रा लिखता हूं ही रन्स। क्या आपने ये सेंटेंस सुना है? इट्स अ वेरी कॉमन सेंटेंस। क्या ख्याल है, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, वो भागता है। समझ आई कि नहीं आई? ये बड़ा कॉमनली यूज सेंटेंस है। अब इसमें जो नाउन फ्रेज है वो क्या है, बोलो? ही। क्यों? क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? नाउन की ही जगह क्या इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन। और यहां पे वर्ब क्या है? रन्स। तो वर्ब फ्रेज क्या है यहां पे? रन्स। जस्ट लुक एट इट, यहां पे नाउन फ्रेज सिर्फ एक नाउन पे मुश्तमिल है और वर्ब फ्रेज सिर्फ एक वर्ब पे मुश्तमिल है। बात समझ आई कि नहीं आई? सो देयर आर सम केसेस, देयर आर सम सिचुएशंस विद इन द सेंटेंस के जब फ्रेज सिर्फ एक लफ्ज पे भी मुश्तमिल हो सकती है। यानी ये ही अकेला फ्रेज नहीं है, लेकिन किसी फिक्रे के अंदर, बात समझ आई, इन अ सेंटेंस विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। बात समझे हो कि नहीं समझे? यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खास हालात में होती हैं। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे ईद की नमाज एक खास दिन, एक खास वक्त पे ही होती है। बात समझे हो? जैसे जुम्मा। लेकिन नवाफिल हम वो कभी भी हो जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसी तरह से बाद औकात ऐसा होता है, जो मॉडर्न ग्रामर है वो एक लफ्ज को भी एक फ्रेज मानती है, और उसका सबूत मैंने आपको दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी ये सेंटेंस का पूरा एक ट्री डायग्राम बन सकता है। इसको जरा एक डिस्कार्ड करके एक नई स्लाइड इंसर्ट करें, ब्लैंक स्लाइड, डुप्लीकेट बनाएं और ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट। बस ठीक है, जरा करें। अब जैसे देखो, मैंने आपको क्या बोला कि बेसिक क्या है? एनपी प्लस, बोलो, वीपी। एटलीस्ट ये होना चाहिए। अब हमने क्या देखा कि नाउन फ्रेज किस पे मुश्तमिल हो सकती है? नाउन पे, अकेले नाउन पे। बात समझे हो? अब नाउन फ्रेज और किस किस पे मुश्तमिल हो सकती है? देखें, सिर्फ अकेले नाउन पे मुश्तमिल तो नहीं हो सकती। मैंने अभी अभी क्या बोला था? द ग्रेट एम्परर। नाउन क्या है? एम्परर, ऐसा ही है। तो ग्रेट क्या हुआ? एडजेक्टिव। ग्रेट क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, खसूसियत बता रहा है, ऐसा ही है ना? और उससे पहले दी क्या है? आर्टिकल, स्पेसिफाई कर रहा है, ऐसे ही है। तो नाउन फ्रेज नाउन पे तो मुश्तमिल हो सकती है, और किस पे मुश्तमिल हो सकती है? नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन पे भी मुश्तमिल हो सकती है। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? यानी अब नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि पॉसिबल स्टेट्स क्या है एक नाउन फ्रेज की। या तो नाउन फ्रेज अकेले नाउन पे मुश्तमिल होगी, या नाउन फ्रेज आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन पे मुश्तमिल होगी, या नाउन फ्रेज सिर्फ आर्टिकल प्लस नाउन पे मुश्तमिल हो सकती है। अब आर्टिकल प्लस नाउन पे कैसे मुश्तमिल होगी? जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं? दी बॉय। बात समझ आई कि नहीं आई? द स्टूडेंट इज अटेंडिंग द क्लास। तो इसमें दी स्टूडेंट क्या है? नाउन फ्रेज है। और यहां पे नाउन फ्रेज किस पे मुश्तमिल है? आर्टिकल प्लस नाउन फ्रेज पे। बात समझ आई कि नहीं आई? गुड बॉय इज गोइंग टू जिम। अब यहां पे गुड बॉय क्या हो गया? बोलो, नाउन फ्रेज। और गुड क्या है? एडजेक्टिव। और बॉय क्या है? नाउन। तो यहां पे नाउन फ्रेज क्या बन गई? एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी ये डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या हो सकते हैं? बोलो, किसके हो सकते हैं? नाउन फ्रेज के। बात समझ आई कि नहीं आई? अब वर्ब फ्रेज क्या है? वर्ब फ्रेज में क्या क्या हो सकता है? तो आपको पता है वर्ब फ्रेज कितनी बड़ी भी हो सकती है? बताऊं? जैसे देखो,
वर्ब फ्रेज सिर्फ और सिर्फ, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वर्ब फ्रेज सिर्फ वर्ब पे भी मुश्तमिल हो सकती है, यानी ऑब्लिगेटरी पार्ट ये है, इसका होना जरूरी है, वर्ब के बगैर वर्ब फ्रेज नहीं हो सकती। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, वी प्लस एनपी प्लस पीपी प्लस एपी, यानी एक नाउन फ्रेज में वर्ब के साथ नाउन फ्रेज, एक वर्ब फ्रेज में वर्ब के साथ नाउन फ्रेज प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज प्लस एडवर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं, या वर्ब के साथ इनमें से कोई एक भी हो सकता है, या वर्ब के साथ इनमें से कोई दो भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं, कोई एक सिंपल सेंटेंस बोले, इट इज अ चेयर, ऐसे ही है, क्या फिक्रा बना, इट इज अ चेयर, हम लिख लेते हैं, क्या ख्याल है, इट इज अ चेयर। अब इसमें सबसे पहले तो जरा मुझे लिखवाओ ना, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ऐसे ही है बच्चों। ये आर्टिकल और नाउन मिलके क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। यहां पे अकेला प्रोनाउन ही क्या बना रहा है, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज, वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब ये वर्ब और एनपी मिलके क्या बन गया, वर्ब फ्रेज बन गया, और एनपी और वीपी मिला तो क्या बन गया, सेंटेंस। इसका मतलब है ये सेंटेंस ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, जी बच्चा पार्टी, कुछ क्लियर हुआ। तो इसी तरह यहां पे वर्ब फ्रेज क्या है, वी प्लस एनपी पे मुश्तमिल है, ठीक है। इट इज अ चेयर ऑफ ब्लैक कलर, लेट्स सपोज, अब हमने कर लिया। अब यहां पे ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है ना, क्या ख्याल है, पोजिशनिंग वर्ड है ना, क्या ख्याल है। और ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक एडजेक्टिव है, और कलर क्या है, बोलो, ब्लैक नाउन है या, जी सोचो, ब्लैक नाउन होगा, कलर एडजेक्टिव होगा कि नहीं, क्या होगा सोचो जरा, हाँ भाई आप बताएं, वो आप पीछे वाले, भाई ब्लैक कलर दोनों क्या है, दरअसल नाम ही है, ठीक है, एक कलेक्टिव नेम यूज हो रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन के तौर पे, ठीक है, समझ आ गई। तो ये यहां पे क्या बन गई, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और नाउन फ्रेज मिलके क्या बनी, प्रपोजिशनल फ्रेज, और प्रपोजिशनल फ्रेज किस में आ गई, वर्ब फ्रेज में। अब देखो वर्ब फ्रेज कितनी बड़ी हो गई, क्या ख्याल है, बात समझ आई कि नहीं आई। और अगर आप आगे क्या लगा ले, एडवर्ब फ्रेज लगा ले, तो क्या हो जाएगा, बोलो, फिर भी वो वर्ब फ्रेज में ही रहेगी। तो आपको मैंने क्या समझाया, अ फ्रेज कुड बी अ वर्ड एंड अ फ्रेज कुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये हम फैसला कैसे करेंगे, विद रेफरेंस टू सेंटेंस। समझ आई आपको, यानी एक फ्रेज कितनी बड़ी हो सकती है, या एक फ्रेज क्या है, आया कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड है या सिंगल वर्ड है, किससे पता चलेगा, फिक्रे से। बात समझ आई कि नहीं आई, यानी आइसोलेशन में आप फैसला नहीं कर सकते कि एक फ्रेज क्या है, या ये फ्रेज है कि नहीं है। बात समझे, आपका क्या नाम है, अहमद। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये कहता है कि भाई अहमद एक फ्रेज है कि नहीं है, क्या हम ऐसे फैसला कर सकते हैं, नहीं। हम कहेंगे कि भाई अहमद कहाँ का अहमद, किस फिक्रे में अहमद, क्या ख्याल है, हमें वो फिक्रा दिखाओ जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उस फिक्रे के एतबार से हम देखेंगे कि आया कि ये अकेला एक फ्रेज बन रहा है, या इसके साथ कोई लफ्ज जुड़ के फ्रेज बन रहे हैं। बात समझ आई। जैसे मिसाल के तौर पे माई नेम इज अहमद, माई नेम इज अहमद, तो यहां पे इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और अहमद क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, अकेला नाउन हो गया ना, क्या ख्याल है। दी गुड बॉय अहमद इज गोइंग टू स्कूल, अब यहां पे अकेला अहमद फ्रेज नहीं है, दी गुड बॉय ये कंप्लीट फ्रेज बनी। बात समझे आपके, नहीं समझे। तो फ्रेज को आमतौर पर डिफाइन यूं ही किया जाता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बात समझ आई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन सम सिचुएशंस, इन सम केसेस, मैंने आपको बना के भी बताया, एक सिंगल लफ्ज भी क्या हो सकता है, फ्रेज हो सकता है। कैसे हो सकता पता चल गया, क्लियर है ना, जी बच्चा पार्टी।
समझ आ गई? यस, फ्रॉम एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? कोई सवाल नहीं है, ओके। तो लेट्स मूव फर्दर। सॉरी, हमारी क्लॉज तो रह गई, क्या ख्याल है? क्लॉज रहती है ना गालबन? तो आए देखते हैं क्लॉज क्या है। मैंने आपको क्या बताया? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which at least contains one subject and one predicate। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, बोलो। एक सेंटेंस को बुनियादी तौर पे 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? इसको हम सेंटेंस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम पढ़ेंगे, हमारी 9वीं की क्लास में तकरीबन 14 बड़े सेंटेंस पैटर्न हैं, ये एक है। बात समझ आई कि नहीं आई? SVO, ठीक है, SVDOIO, इज दैट क्लियर? इसी तरह काफी सारे बनते हैं। समझ आ गई बच्चों? हम 9वीं की क्लास में ये सब पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन द यूनिट 6। बात समझे आपके? नहीं समझे? तो उसी के लिए ये हम सब कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमारी एक फ्लो बन जाए। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है, ऐसा ही है। which is doing the action, which is the doer of the action, is that clear? Each and every sentence tell us about a certain type of action। हर फिक्रा हमें किसी खास तरह के एक्शंस के बारे में क्या करता है? बताता है। क्या इसके अलावा फिक्रा कुछ करता है? नहीं। कोई भी सेंटेंस, वो सेंटेंस इसीलिए है क्योंकि वो हमें यह बताता है कि भाई क्या हुआ है, या कैसे हुआ है, या कब होगा, या क्यों होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बच्चों? अब देखो, इन द सेंटेंस द डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट। पता चल गया आपको? वर्ब क्या है? द एक्शन इटसेल्फ। द एक्शन इटसेल्फ विद इन अ सेंटेंस इज वर्ब। पता चल गया आप सबको? एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जी, जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल क्या दी थी? ही रन्स। ही रन्स में ही क्या है? सब्जेक्ट। और रन्स क्या है? वर्ब। और यहां पे ऑब्जेक्ट है? जी नहीं है। कुछ फिक्रे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं आई? और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई एग्जांपल आप में से कोई दे दे। ही गो टू स्कूल, क्या ख्याल है? ही गोज टू स्कूल। बात समझ आई कि नहीं आई? गोज होगा या गो होगा? गोज। क्यों? क्यों? सोचो। आप सबको प्रेजेंट आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में डेफिनेट एक्शंस के बारे में बात करते हुए ही, शी, इट या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। समझ आई कि नहीं आई? तो ही गोज टू स्कूल। अब यहां पे ही क्या हो जाएगा? जी बोलो। सब्जेक्ट हो जाएगा। और गोज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और टू स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? स्कूल की तरफ जा रहा है ना। द डूअर ऑफ द एक्शन, द एक्शन इटसेल्फ एंड द अफेक्टी ऑफ द एक्शन। बात समझ आ गई? लिख लो, नोट कर लो, बाद में नहीं याद रहेगा। द डूअर ऑफ द एक्शन, इज दैट क्लियर? यानी जो काम कर रहा है। द एक्शन इटसेल्फ इज वर्ब एंड द अफेक्टी ऑफ द एक्शन, यानी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्शन जिसके साथ कंसर्न्ड है, वो क्या है? बोलो। ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ गई आपको? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पता चल गया? जी बच्चों, क्लियर हो गया? नाउ इट्स टाइम टू कंसीडर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? हम सेंटेंस को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो हो गया सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक हो गया? सब्जेक्ट के अलावा सारे का सारा फिक्रा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। Because predicate means that something which defines or tell us about the subject। कि सब्जेक्ट था अली, अली ने क्या किया, अली ने कैसे किया, कब किया, जो कुछ भी उस फिक्रे में अली के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? प्रेडिकेट। So in every sentence
other than the subject the complete sentence is considered as, बोलो, प्रेडिकेट। क्योंकि प्रेडिकेट वो है जो हमें किसके बारे में नॉलेज देता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बोलो, सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें गोज टू स्कूल ये सारा मिलके किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही के बारे में। और ही क्या है, सब्जेक्ट है। बात समझ आई आपको कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो प्रेडिकेट क्या है, that much part of the sentence other than the subject which gives information about the subject. Is that clear? जैसे कोई फिक्रा बोलो, कोई सेंटेंस जी, कोई सेंटेंस जी, he likes to go to the park। अब ही क्या है, सब्जेक्ट, और ही के बारे में बाकी सारे का सारा बताया जा रहा है, तो बाकी सारे का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। बात समझ आई? तो क्या आप सबको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है जी? तो a group of words that includes a subject and a predicate at least consist of a verb। अब जो predicate है उसके लिए भी एक obligation है, and what is that? A predicate must has to be considered upon single verb। क्योंकि हमने ऊपर ये रूल पढ़ा है कि कम से कम एक नाउन और एक वर्ब एक फिक्रे में होना चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि प्रेडिकेट, देखो, वर्ब प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज पे मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक वर्ब प्रेडिकेट में होना जरूरी है। बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे मिसाल के तौर पे इस फिक्रे में देखो, सब्जेक्ट तो हो गया ही, तो यहां पे प्रेडिकेट क्या है, रन्स। तो रन्स यहां पे जो प्रेडिकेट है वो सिर्फ किस पे मुश्तमिल है, वर्ब पे। लेकिन यहां पे प्रेडिकेट किस पे मुश्तमिल है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे या वर्ब प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज पे। ऐसे ही है ना बच्चों? तो प्रेडिकेट में कम से कम क्या होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है, और वर्ब के अलावा सब कुछ उसमें मौजूद हो सकता है। इज दैट क्लियर? और वो सब कुछ क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। क्या ख्याल है, ही रन्स वेरी फास्टली टुवर्ड्स द स्कूल, he runs very fastly towards the school। अब देखो प्रेडिकेट किस पे मुश्तमिल हुआ, रन्स क्या है, वर्ब, वेरी फास्टली एडवर्ब, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। क्या ख्याल है? इसी तरह फिर क्या है, टुवर्ड्स द स्कूल, प्रपोजिशनल फ्रेज। समझ आ गई बात की? क्लियर है ना? टुवर्ड्स पोजीशन को शो कर रहा है ना, और आगे नाउन फ्रेज आ गई। क्या जहन में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना जी बच्चों? तो सब्जेक्ट किस पे मुश्तमिल हो सकता है, किसी नाउन पे या प्रोनाउन पे, और बाकी जो प्रेडिकेट है उसमें वर्ब होना जरूरी है। और वर्ब के अलावा, बोलो बच्चों, काफी सारी चीजें हैं जो मौजूद हो सकती हैं। समझ आ गई बच्चों? सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट जी बच्चों, फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, क्या आपको पता सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? जी बच्चों, आप सभी टाइम पे आया करो, ऐसे आप लेक्चर का एक बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा मिस कर देते हैं। देखो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। सब्जेक्ट क्या है, द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, कोई भी फिक्रा वो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। पता चल गया आपको? ठीक है, वो जो एक्शन कर रहा है, सेंटेंस हमें हमेशा किसी एक्शन के बारे में बताता है। ईच एंड एवरी सेंटेंस टेल अस अबाउट अ सर्टन एक्शन। किसी खास एक्शन के बारे में हमें फिक्रे बताते हैं। जैसे इट इज अ चेयर, ये कुर्सी है। ठीक है, तो वर्ब क्या था, कोई भी ऐसा लफ्ज जो किसी चीज के होने को या करने को बयान करे। ठीक है, समझ आ गई? यानी स्टेट को या एक्शन को बयान करे। पता चल गया आप सबको? क्लियर है? अब देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, द डूअर ऑफ द एक्शन।
यानी किसी फिक्रे में जो एक्शन करने वाला है वो कौन है? सब्जेक्ट। और वो किस पे मुश्तमिल हो सकता है? या तो नाउन पे या प्रोनाउन पे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अली गोज टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल। यहां पे काम करने वाले कौन है? एक्शन परफॉर्म करने वाले कौन है? अली या ही? ऐसे ही है। तो अली क्या है? नाउन। और ही क्या है? बोलो, प्रोनाउन। बात समझ आई आपको जी? तो सब्जेक्ट पता चल गया जी। वर्ब को, वर्ब को, जैसे मैंने कहा ये फिक्रे की एक डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यानी एक सेंटेंस को हम इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको कि नहीं समझ आई? अब देखो, जैसे मैंने आप सबको बोला, सब्जेक्ट के अलावा एक सेंटेंस में जो कुछ भी है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? The subject is the doer of the action, and all the action which tell us about the subject, what the subject is going to do, what the subject is going, what the subject is, ठीक है, वो क्या है? प्रेडिकेट। पता चल गया बच्चों? अब क्लॉज क्या होती है? A group of word which consist upon at least one subject and one predicate। बात समझ आ गई आपको? क्लियर है जी बच्चों? जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? What you said। अब what क्या है? बोलो, क्वेश्चन पार्टिकल है। you क्या है? बोलो, सब्जेक्ट है। और said क्या है? कहना, यानी वर्ब है ना, एक्शन वर्ड है ना। क्या ख्याल है? समझ आ गई? अब इस फिक्रे में, इस क्लॉज में पूछा जा रहा है कि भाई सब्जेक्ट ने क्या किया। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? तो इस तरह से जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मेंट बाय अ सेंटेंस? एक सेंटेंस क्या होता है? क्या किसी के जहन में ये आता है जी? बोलो। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। सेंटेंस क्या है, जरा गौर से सुनना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which consist on a subject and predicate। आपको ये डेफिनेशन मैच नहीं लगती? किसके साथ? क्लॉज के साथ। क्लॉज को भी तो हमने यही डिफाइन किया। क्या ख्याल है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड which consist on a subject and a predicate। और सेंटेंस को हमने क्या बोला? अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है। और वो फर्क क्या है? A group of word having a subject and a predicate and also convey the complete sense। बात समझ आई? यानी सेंटेंस वो है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, लेकिन वो मुकम्मल सेंस बनाते हो। सेंस समझते हो? कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हो। बात समझे हो आपके? नहीं समझे? इज दैट क्लियर? यानी क्लॉज के लिए ऑब्लिगेटरी चीजें, नेसेसरी चीजें जिनके बगैर एक क्लॉज नहीं हो सकती, वो कितनी है? दो। पहली सब्जेक्ट और दूसरी बोलो प्रेडिकेट। ऐसे ही है। लेकिन फिक्रे के लिए जरूरी चीजें जिनके बगैर फिक्रा नहीं हो सकता वो कितनी है? तीन। पहला प्रेडिकेट और फिर कंप्लीट मीनिंग। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी उस ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट सेंस कन्वे होती हो। समझे आपके? नहीं समझे? इज दैट क्लियर? पता चल गया कि नहीं चला? क्लियर है ना? तो आओ जरा क्लॉजेस की टाइप्स देखते हैं। अब क्लॉजेस दो तरह से हैं। अब देखो, सबसे पहले है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जो अकेली एक फिक्रे के तौर पे एग्जिस्ट कर सके, अकेली एक सेंटेंस के तौर पे, जिसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत ना पड़े। उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जैसे दी कैट सैट ऑन द मैट। अब सवाल यह है
कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी सेंटेंस की डेफिनेशन को क्वालिफाई करती है तो इसमें और उसमें क्या फर्क रहा? सवाल है ना। देखो, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, कंप्लीट सेंस भी है। क्या ख्याल है? अगर कंप्लीट सेंस ना होती तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते क्या? नहीं कहते ना, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। किसके लिए? मीनिंग के लिए। ऐसा ही है, बात समझे हो? लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर क्लॉज क्या करे, अगर क्लॉज कंप्लीट सेंस बनाए तो ये उसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है। लेकिन सेंटेंस के लिए ये जरूरी है, ये एडिशनल नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ आई? कुछ चीजें होती है ना कि भाई ये करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको पाबंद किया जाता है कि आपने 8 बजे से 2 बजे तक बैठ के पढ़ना, अब कोई बच्चा वो 3 बजे तक बैठ के पढ़ता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसने 1 घंटा एडिशनल पढ़ा। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 की बजाय 12 बजे उठ के भाग जाता है तो इसका क्या मतलब है? कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, क्योंकि 2 बजे तक क्या थी? ऑब्लिगेशन थी। ऑब्लिगेशन समझते हो ना? यानी जरूरी थी, पाबंद था कि ऐसा होगा तो ऐसा माना जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर वो उससे एक्स्ट्रा भी कुछ कर ले तो फिर एक्स्ट्रा चीज है। बात समझे आपके? नहीं समझे? तो क्लॉज अगर कंप्लीट सेंस बनाए तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह देते हैं, लेकिन उसके लिए कंप्लीट सेंस देना जरूरी नहीं है। वो किसके लिए जरूरी है? सेंटेंस के लिए। हाँ, अगर वो दे रही है तो ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस के तौर पे लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ complete sentence and needs an independent clause to complete its meaning because the cat was tired. अब because the cat was tired यानी क्योंकि बिल्ली थकी हुई थी, क्या मतलब? कंप्लीट सेंस कन्वे हुई। लेकिन अगर पिछले फिक्रे को पढ़ेंगे, the cat sat on the mat because the cat was tired, यानी वो मैट के ऊपर बैठ गई। बात समझे हो कि नहीं समझे? क्योंकि वो हुई थी। अब सेंस समझ आती है ना? तो डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज को बोलते हैं जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत हो? किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इज दैट क्लियर बच्चों? जी, क्लॉज की दोनों टाइप्स पता चल गई। इनका एक एक और नाम भी है, इसको ऑर्डिनेट क्लॉज और इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और इसको सब ऑर्डिनेट। ठीक हो गया? सेम है, बस उसके दूसरे नाम है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आप सबको फ्रेज, फ्रेज की टाइप्स, क्लॉज, क्लॉज की टाइप्स और सेंटेंस क्लियर हो गया? चलें आगे। कोई सवाल यहां तक? जी बच्चों, फ्रॉम दी ऑनलाइन, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, so let's try to explore the sentence, the concept of a sentence. So a sentence is a group of words that expresses a complete thought consisting of a subject and a predicate. So three things. Firstly, a sentence has to be that group of words which conveys the complete thought, the complete meaning, and has to be consist upon a subject and a predicate. So here we have examples of some sentences like they go to the gallery every Saturday. The sun shines bright. The early birds catches the worm. तो स्टूडेंट्स, क्या आप में से कोई यहां पे आएगा और जरा सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करे? कौन आएगा? हाँ भाई, आ जाओ। समझ आइए ना? अच्छा, वो कहता किसी और को बुला ले, शर्मा आ रहा है। आप आ जाए। 3 सेंटेंसेस हैं, एक एक करो, 1 मिनट लगना है, क्योंकि प्रैक्टिस बाय डूइंग इज द बेस्ट थिंग। ये फर्स्ट सेंटेंस है, आपने बताना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, और फिर ये बताना है कि क्यों है। इसके ऊपर लिख दो एस। ठीक हो गया? सारा, इतना सारा क्यों?
क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट वो सारे का सारा हिस्सा जो किसके बारे में बताता है हमें? सब्जेक्ट के बारे में। तो फिक्रे में सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट के बारे में ही तो बता रहा है। यानी दे गो टू दी गैलरी एवरी सैटरडे। गैलरी में कौन जाता है? दे। हर सैटरडे कौन जाता है? दे। यानी वो जाते हैं। समझे हो कि नहीं समझे? So that's why, because all this part is actually giving us information about the subject. That's why this complete portion is considered as predicate. Is that clear? बहुत अच्छे, शाबाश, आ जाओ। जी, सेकंड सेंटेंस, the sun, okay, shines bright. क्यों? तो यहां पे प्रेडिकेट इतना बड़ा, यहां पे इतना छोटा क्यों? थोड़े एक्शन के बारे में बता रहा है, एक्शन को ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट एक प्रेडिकेट कितना होना चाहिए? यानी इसको जरा प्रेडिकेट को काटो, कितना बचे तो फिर भी सेंटेंस रहेगा। अगर हम ब्राइट काट देंगे, क्योंकि ब्राइट क्या है? एडवर्ब है। बात समझ आई कि नहीं आई? समझियो बच्चों? तो क्या हुआ? द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। क्या ये कंप्लीट फिक्रा नहीं है? द सन क्या है? सब्जेक्ट। शाइन्स क्या है? प्रेडिकेट। और यहां पे प्रेडिकेट सिर्फ किस पे मुश्तमिल है? वर्ब पे मुश्तमिल है। बात समझे हो आपके नहीं समझे? इज दैट क्लियर? जी बच्चों, क्या समझ आ गया आप सबको कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और सेंटेंस क्या होता है? जी, किस किस को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करो। आपको नहीं क्लियर हुआ फिर हाथ खड़ा करो ना। हाँ भाई, आप लोगों को नहीं पता चला? अगर किसी को नहीं पता चला आप पूछ सकते हैं। ये जुमीद भाई के प्रेशर में हाथ नहीं खड़ा करना आपने। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, जो सेंटेंस हैं उसको ये हमने देख लिया, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, हमने देख लिया। ओके, अब देखो जो सेंटेंस है ना बच्चों, उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे। वी क्लासिफाई द सेंटेंसेस इन टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। Firstly, we classify the sentences, we categorize the sentences on the base of function. On the base of function, what the sentence is going to perform. मुमकिन है कि एक सेंटेंस क्या करे? हुक्म दे। एक सेंटेंस रिक्वेस्ट करे। एक फिक्रा क्या काम कर रहा है? किसी को मनाने का, परसू करने का। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? एक फिक्रा मुमकिन है कि सवाल कर रहा हो, तो सवाल करना, परसू करना, किसी चीज को कंफर्म करना, ये सारे क्या है? फंक्शंस है ना। हम जुबान को इस्तेमाल करके ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है? तो दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज द सेंटेंसेस ऑन द बेस ऑफ फंक्शन इन 4 टाइप्स। फंक्शन की बुनियाद पे हम फिक्रे को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? कितनी टाइप्स में? 4 टाइप्स में। पहली कौन सी है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव। दूसरी कौन सी है? इंपेरेटिव। तीसरी इंट्रोगेटिव और चौथी एक्सक्लेमेटरी। तो आए देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। These sentences make a statement or provide information. They typically end with a period. Period कहते हैं फुल स्टॉप को। यानी ऐसे फिक्रे जो क्या करें? जो किसी भी चीज को क्लियर करें। जैसे दिस इज अ चेयर। बात समझे कि नहीं समझे? डिक्लेयर किया ना, क्या ख्याल है कि ऐसे है? ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? ही गो टू स्कूल। बात समझ आई? जितने भी डेफिनेट सेंटेंसेस हैं, यानी अगर कोई फिक्रा ये कर रहा है, वो किसी चीज को क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है कि ऐसे होता है। ठीक है, हम क्लास पढ़ते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? इट इज अ कैमरा, दीज आर द स्टूडेंट्स, इट इज द व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड कह लो। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये सारे क्या हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो कुछ आप लोग भी बताओ। हाँ भैया, आप बताएं। दिस इज अ रूम। जी, आप। ये हो गया, कुछ नया बताओ। दिस इज अ टेबल।
दिस इज अ बॉय जी, दिस इज अ बुक जी। ये हो गया ना, कुछ नया लाओ जी बच्चों। फ्रॉम द ऑनलाइन, इज देयर एनीबडी हु वांट टू पार्टिसिपेट? ओके, नोबडी इज देयर। हाँ भाई, so you have a pen. So these all are actually the declarative sentences, because these all sentences are declare something at a certain point. Some sentences declaring that someone has a pen, some sentences declaring that this is a camera. Is that clear? So each and every sentence which declares anything, which declares the happening or beingness of anything, is considered as the declarative sentences or the assertive sentences, like the sky is blue. Is that clear? So what we have next, the imperative sentences. Imperative sentences को उर्दू में हम कहते हैं हुक्मिया फिक्रे। क्या बोलते हैं? मतलब बाद औकात हम लैंग्वेज को कमांड देने के लिए भी तो यूज करते हैं ना। क्या ख्याल है? हे यू स्टैंड अप, अब ये क्या है? कमांड है। और मैंने दी कैसे? लैंग्वेज यूज करके, यानी लैंग्वेज ने फंक्शन परफॉर्म किया ना। क्या ख्याल है? बात समझ आई कि नहीं आई? साल के तौर पे, हे स्टूडेंट्स काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास, अब ये क्या है? बोलो। इंपेरेटिव। बात समझ आई कि नहीं आई? तो कोई भी ऐसा सेंटेंस विच कंटेन्स अ रिक्वेस्ट और अ कमांड, वो क्या है? Imperative. Let's suppose if I said that, hey Zumid, kindly bring a glass of water. Is it a command? No, this is not a command. It is a request. It is a request. So any request or any command, if the sentence is presenting a request or a command, is considered as imperative sentence. Is that clear? So the sentence, if the sentence is declaring something, then what it is? Declarative or assertive. And if the sentence is giving a command or instruction or request to someone, then what it is? Imperative. These sentences give a command or make a request. They often end with a period but can also end with an exclamation point. अब exclamation point तब होता है कि जब आप बड़े शदीद गुस्से में किसी को क्या दें? हुक्म दें। क्या ख्याल है? बादुकात ऐसे हो जाता है ना, छोटे भाइयों के साथ या बहनों के साथ, मतलब थोड़ा सा गुस्सा आ ही जाता है आपको। क्या ख्याल है? या लेट्स सपोज अगर आपने काम ठीक ना किया हो तो आपके टीचर को बादुकात गुस्सा आ जाता है, आपके पेरेंट्स को बादुकात गुस्सा आ जाता है। तो चूंकि जब डीप इमोशंस हो तो फिर एंड पे क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का पता है ना? तो इसलिए कहा गया कि ज्यादातर तो ये किस पे खत्म होते हैं? पीरियड पे, फुल स्टॉप पे। लेकिन बाद औकात जरूरत पड़ जाती है क्या लगाने की? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि उस हुक्म में बड़ा ज्यादा क्या हो? गुस्सा हो। क्या ख्याल है? समझे बात के नहीं समझे? इज दैट क्लियर? जैसे कभी टीचर कहता है लाओ मोला बख्श, लाओ स्टिक, हाँ समझे, तो वो प्यार से तो कभी नहीं कहेगा। क्या प्यार से कहेगा? हाँ समझे हो कि नहीं समझे? इसी तरह अगर आप में से किसी ने कभी कोई शरारत की हो, किया कभी किसी ने कोई शरारत? हाथ खड़ा करो ना, किस किस ने कभी कोई शरारत की है? अच्छा, ये ऑनलाइन वाले भी सारे बच्चे मासूम हैं, यहाँ वाले भी सारे बच्चे मासूम हैं, सारी शरारतें मैंने और जुमीद नहीं की हैं? फिर बस भाई हाथ खड़ा करो, किस किस ने कभी कोई शरारत की है? अच्छा, कभी किसी को किसी शरारत की वजह से कोई मतलब मार शार पड़ी हो या डांट पड़ी हो बड़ी शदीद वाली, पड़ी है कभी किसी को कोई डांट? हाथ खड़ा करो जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी काफी सारे हमारी बरादरी के ही हैं, यानी सबको ही डांट शांट पड़ी हुई है। तो वो जो डांट पड़ती है वो बड़ी मोहब्बत में पड़ती है क्या? और उसमें हुक्म दिए जाते हैं ना आपको, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। बात समझे हो? तो वो क्या होते हैं? इंपेरेटिव। अब इस तरह के फिक्रों के एंड में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्योंकि अब्बा जान ने हुक्म दिया, ठीक है, या टीचर ने हुक्म दिया, मोहब्बत में नहीं दिया, गुस्से में दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो दैट्स वाई, क्योंकि सडन इमोशंस आ जाएंगे, इसलिए एंड पे क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या आपको ये दो टाइप्स क्लियर हो गई?
Yes students, these two are clear. Let's move to the third one, the interrogative. Interrogative यानी interrogation. कभी आपने सुना है interrogation? तफ्तीश, पूछगछ करना पुलिस वाले करते हैं या बादुगाद माँ बाप भी करते हैं। जैसे अभी हमने एक सिनेरियो जिक्र किया ना कि अगर कोई बहुत बड़ी शरारत आप कर दें तो फिर लाइन हाजिर हुआ किया जाता है आपको, हाँ भाई आप बताओ कैसे हुआ था, आप बताओ कैसे हुआ था, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जाए। सही है ना? तो इंटेरोगेशन क्या है? तफ्तीश यानी पूछगछ। तो इंटेरोगेशन से फिक्रा क्या बना? इंट्रोगेटिव। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच आस्क समथिंग। बात समझ आई कि नहीं आई? कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? पूछने का। बात समझ आई कि नहीं आई? ये असल में कम्युनिकेटिव फंक्शंस हैं। ये जो हमने फंक्शन लिखा है ये दरअसल कौन से फंक्शंस हैं? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेशन क्या है? गुफ्तगू, बातचीत। यानी बातचीत के दौरान हमें जुबान को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है ना। क्या ख्याल है? कभी पूछने के लिए, कभी हुक्म देने के लिए, कभी रिक्वेस्ट यानी तरला करने के लिए। क्या ख्याल है? किसी ट्रिप पे जाना है या कुछ ऐसा करना तो करना पड़ जाता है ना। क्या ख्याल है? किया कभी किसी ने? रिक्वेस्ट की है कभी किसी ने किसी टीचर से या किसी पेरेंट से? हम सब ने की होगी। तो इसका मतलब है हमने तब क्या यूज किया था? बोलो, इंपेरेटिव। और अगर हमने पूछा है कि क्या मैं ऐसे कर लूं, क्या ख्याल है, तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव। या आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया, आपने उससे क्या पूछा? व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट इट इज? इंट्रोगेटिव। समझ आ गई? इसी तरह मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज दिस? इंट्रोगेटिव। क्योंकि मैंने जो कम्युनिकेटिव फंक्शन परफॉर्म किया वो क्या है? इंटेरोगेशन। दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज interrogative. Is that clear? Yes students, let's move to the fourth one, exclamatory. An exclamatory sentence is a type of sentence that conveys a strong feeling or emotions. अगर कोई भी ऐसा फिक्रा है जिसमें क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस का इजहार किया जाता है, तो वो क्या है? बोलो, exclamatory. But you have to consider it that exclamatory sentence out of situation होता है। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा 4 साल 5 साल का बच्चा, उसके बाबा, उसके फादर कोई 2 4 5 माह बाद घर वापस आए। जस्ट इमेजिन कि उसके फादर उस डोर से एंटर हुए और वो बच्चा यहाँ पे खेल रहा था या कुछ भी कर रहा था। अब वो अपने फादर को देखता है, अचानक उसके मुंह से वो जो निकलेगा बाबा, क्या लगता है? क्या वो इंट्रोगेटिव होगा? नहीं। क्या वो डिक्लेरेटिव होगा? नहीं। वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। उसके आगे क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि सडन इमोशंस या फीलिंग्स का इजहार सिर्फ आई लव यू या आई हेट यू कहने से नहीं होता, काफी सारी बातों से होता है जो सिचुएशन से निकलती हैं। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? बात समझे आपके? नहीं समझे? तो कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे हुर्रा वी वॉन द मैच। इट्स अ लॉन्ग टाइम के जब हमने कोई मैच जीता था, अगर आप में से कोई मैच देखता है तो, लेकिन हम कह लेते हैं क्या ख्याल है? पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप। अब ये क्या है? तो आप है लेकिन कभी पूरा होगा। खैर, तो अब इसके आगे क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों? क्योंकि जिसने भी कहा उसने आउट ऑफ जॉय कहा। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नफरत, गुस्से या किसी जज्बे के तहत कहा जाए, ठीक है, उसमें वो डीप इमोशंस पाए जाते हों या वो आउट ऑफ डीप इमोशंस हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे जस्ट इमेजिन जंग लगी है, ठीक है, और एक बूढ़ी माँ का इकलौता जवान बेटा है, वो फौजी है, वो उससे मिलता है, अपनी माँ से दुआ लेता है और वो चल पड़ता है। अब उसकी माँ उसको क्या कहती है? हे माय सन काइंडली कम बैक। अब होना तो ये क्या चाहिए? इंपेरेटिव, रिक्वेस्ट होगी ना, लेकिन ये क्या है? क्यों? सिचुएशन देखो ना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसने, वो असल में उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, अपने जज्बात का इजहार कर रही। बात समझ आई? तो 4 मेन कम्युनिकेटिव पर्पसेस हैं जिसकी बुनियाद पे फिक्रों को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 4 में। डिक्लेरेटिव, जो किसी चीज को डिक्लेयर करे। इंपेरेटिव, जिसमें कोई रिक्वेस्ट या
कमांड हो, इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल हो, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें जज्बात का इजहार हो। क्लियर हो गया? लिख लो, फिर याद नहीं रहना। चलें आए आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि सेंटेंसेस को हम ऑन द बेस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चरल बेसिस पढ़ी ना सेंटेंस की। क्या ख्याल है? देखो सेंटेंस को हमने डिफाइन किया था किन चीजों की बुनियाद पे? 3 चीजों की बुनियाद पे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कंप्लीट मीनिंग। तो मीनिंग की बुनियाद पे जो उसकी टाइप्स थी वो हमने देख ली कि नहीं देखी? अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या था? सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता था ना। क्या ख्याल है? तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 3। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड व्हाट दे आर, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। फर्स्टली द सिंपल सेंटेंस, सेकेंडली द कंपाउंड एंड थर्डली द कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस क्या है कि जिसमें क्या हो भाई, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। यानी ये कितनी क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है? 1 क्लॉज पे मुश्तमिल होता है। पता चल गया जी? यानी सिंपल सेंटेंस क्या है? ऐसा फिक्रा जो एक ही क्लॉज पे मुश्तमिल हो, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है और बस मुकम्मल माना दे रहा। बात समझ आई कि नहीं आई? उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। क्लियर है बच्चों? किस किस को क्लियर है सिंपल सेंटेंस? भाई आप लोग भी हाथ खड़ा कर लो। नहीं क्लियर? हो गया? चले ठीक है, आगे देखते हैं जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड किसे कहते हैं? कभी लव्स कंपाउंड सुना है आपने? केमिस्ट्री में पढ़ा हो या साइंस में कभी? क्या होता है कंपाउंड? जोड़ को कहते हैं यार, जुड़ने को कहते हैं, सही है। दो चीजें आपस में जुड़ गई हैं तो वो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। यानी एक कमरा और अगर 2 कमरे हैं तो हम क्या कहेंगे? कंपाउंड हो गया। क्यों? दो चीजें आपस में जुड़ गई ना। तो जब दो चीजें आपस में क्या जाएं? जुड़, तो वो क्या बन जाती हैं? कंपाउंड। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? इसमें 1 क्लॉज थी, इसमें 2 क्लॉजेज है, यानी कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड, इफ, बिकॉज, देन। बात समझ आई कि नहीं आई? जिनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ऐसी 2 क्लॉजेस, यानी ऐसा फिक्रा जो कम से कम कितनी क्लॉजेस पे मुश्तमिल हो? 2। 2 से ज्यादा पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 3 पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 4 पे भी मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन वो क्लॉजेस आपस में किससे जुड़ी होनी चाहिए? ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। ही इज अ गुड बॉय एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। अब एंड मैंने यूज किया, क्लॉजेस कितनी है? 2। तो फिक्रा क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ आ गई? तो कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस होंगी और वो किसके साथ जुड़ी होंगी आपस में? ज्वाइनिंग वर्ड की मदद से, कंजंक्शन की मदद से। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो कंप्लेक्स सेंटेंस क्या है? कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, और वो आपस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जुड़ी नहीं होंगी। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी इसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। कंप्लेक्स सेंटेंस क्या है कि उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी होगी और दूसरे नंबर पे उसमें कंजंक्शन नहीं होगी। जैसे हमने क्या बोला था? ही इज अ गुड स्टूडेंट, लेट्स सपोज ही इज अली अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मैंने एंड नहीं बोला, एंड की जगह मैं क्या लगा दूंगा? कोमा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसमें हम क्या करते हैं? हम क्लॉजेस को आपस में जोड़ते तो हैं लेकिन कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। किसका यूज कर लेते हैं? कोमा का, या डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स का, सेमीकोलन का, कोलन का। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? तो कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्या आप सबको पता चल गया जी? इन दोनों तीनों कैटेगरीज के हवाले से कोई सवाल किसी का? जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया बच्चों? पक्की बात है? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चले आए फिर आपसे पूछते हैं। पढ़ो इसको जरा, निकालो इसमें से डिफरेंट सेंटेंस। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि भाई सिंपल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है। ठीक हो गया?
उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई कौन सा डिक्लेरेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। ठीक हो गया, क्लियर है बच्चों? आपको समझ आ गई होमवर्क क्या करना है जी स्टूडेंट्स? तो ये आपका होमवर्क है, एक तरह से एक्टिविटी है, फर्दर वर्कशीट भी आपको असाइन कर दी जाएगी। लॉगिन बन चुके हैं ना सबके जी? इंटरैक्टिव वर्कशीट के लॉगिन सबके बन चुके हैं कि नहीं बने? बताओ बने हैं कि नहीं बने? सर इनके बन गए हैं सबके लॉगिन? चले वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उस पे आप इंटरैक्टिव वर्कशीट भी इसी कॉन्सेप्ट, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मतलब कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको बस क्लिक करके अटेम्प्ट करने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको चीज समझ आ गई है और आपका स्किल थोड़ा सा डिवेलप हो जाए। क्योंकि जब आप नॉलेज को रिवाइज करेंगे तो फिर चीजें क्या होंगी, डिवेलप होंगी। तो इज दैट क्लियर? So students, if you have any question, you can ask. Yes, from online participants, is there any question? Okay. So students, thank you very much. If you find any confusion, any issue, you can ask in the next lecture. Allah Hafiz.